This is the amount of mental gymnastics I have had to do to keep up with the last week. So, hi, welcome to the 4th episode of Aao Betho, the podcast where Taha talks about stuff he has an 80% grasp on and constantly complains about bikes. ठीक है? So, before we start, just want to say कि if you like this content, ठीक है, if you like something I'm doing, if you don't like something I'm doing, it's really helpful अगर आप comment डाल दो नीचे कि hey, I like this, I do not like this, you can do this, please try this. Anything like that really helps because it helps me make this podcast better and it helps you because now you're watching better stuff. ठीक है? So leave a like, let me know in the comments and please subscribe. That really helps. Keep me motivated to make this. ठीक है? Thank you. So yeah. So ये मैं I think तीसरी दफ़ा शूट कर रहा हूँ because every time I do new stuff comes up. ठीक है? And at this point अगर नया stuff comes up I'm just done. मतलब नहीं आ रहा और edits. ठीक है? Like the entire last week जो CAIE का results का चक्कर चला है it's just been like oof. ठीक है? Like just stop. ठीक है? एक के बाद क्या चीज़. ठीक है? So firstly I'm gonna like recap it in 3 stages what everything that went down. ठीक है? Then I'm gonna go like क्यों हुआ, सही है, क्या हुआ पूरा मसला, exactly the underlying cause, and then my thoughts on how it could have been avoided और क्या बेहतर हो सकता था. ठीक है? So firstly 3 चीज़ें हुई थी. ठीक है? Firstly result came out. ठीक है? The result and the initial reaction that the result generated. ठीक है? Secondly the क्या कहते हैं pushback that came out because of those results. ठीक है? And the consequences of the pushback. ठीक है? Basically. Then thirdly is the new announcement and the feedback and the क्या कहते consequences of the new statement that CAIE said. ठीक है? So before I go into the like all of these, ठीक है, I remember like 11 को रिजल्ट था and 10 को मैंने वीडियो डाली थी and I clearly said कि जो भी आपका रिजल्ट है आपकी जिम्मेदारी है. It's your you have to own up to it and you are responsible for it. चाहे जो भी आए अब आपके ऊपर. And फिर रिजल्ट आया. And look, I still stand by that. ठीक है? Your result is still your responsibility and you have to own up to whatever you grades you got. But I love that some people just took that responsibility really well and just like burn कर दूंगा, मैं सब जला दूंगा अगर सही नहीं किया ये सब. सही है? So okay, firstly initial result. ठीक है? So 11 को result आया. If you were like me, आपने खुद ने नहीं चेक किया, I'm like मेरे दोस्त को दे दिया, like मुझे चेक करके बता देना. And then she calls me up and she's like तुम यहाँ जा, ये यूनी में तुम्हारा एडमिशन हो गया. I'm like सही है. फिर उसने मुझे ग्रेड्स बताया. I'm like यार और बेहतर आ सकते थे. And then she goes like यार मेरे इससे भी खराब है. I'm like okay, एक सेकेंड रुको, मैं अपना छोड़ता हूँ, तुम बताओ क्या हुआ. ठीक है? ये हुआ था. So एक रिजल्ट्स है. So रिजल्ट्स है. ठीक है? And all of us just went collectively like सही है. And like it was just that. ठीक है? Just not knowing ये हुआ क्या, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ. सही है? We were just like ये गलत है. ठीक है? And then उसी के बाद फौरन and then अगले दिन तक I feel 12th तक everyone just like यूनी गई, एडमिशन गया, स्कॉलरशिप गई, डूब मरता हूँ. Just like that constant fear. Like yes, 2020 has found a new way to upset me. Great. ठीक है? ये हुआ. Then secondly the pushback that came out. सही है, ये हुआ. So a lot of people are like यार ऐसा रिजल्ट नहीं आ सकता, मेरा ऐसा रिजल्ट नहीं आ सकता. लोग स्कूल्स में गए, लोग ने स्कूल्स में जाके बोला कि क्या किया आपने, क्या भेजा है, ये सब. ठीक है? And obviously like every time a major corporation messes up, f's up, there's all Nixor के बच्चे foreign group बना देते हैं. That happened. ठीक है? Cambridge grade conflicts. Nixor के बच्चे like मसला हुआ, ग्रुप बनाओ, सबको ऐड करो, सब ईमेल भेजेंगे.
I'm not dissing on the group. It's good they made that. सही है. It helped. Obviously, a lot of people rant and it was cathartic for a lot of people. ठीक है. It helped them understand कि यार ये मेरे साथ नहीं हुआ, दूसरों के साथ भी हुआ है. And that helped make a more rallying cry कि यार हम सबके साथ गलत हुआ है, हमें कुछ करना चाहिए. ठीक है. ये हुआ. उसके बाद then ग्रुप्स बने एंड देन एवरीवन वाज लाइक यार मेरा डबल ए आया, मेरा सी कैसे भेज दिया आ गया, ये हुआ. सही है. लोगों के यूज आ रहे हैं मजे से. एंड yeah, I felt bad most for the people with you because honestly अगर कोई बच्चा आपको बोले कि यार पेपर दिए बगैर मेरा कैसे हुआ है, तो आप भी क्या बोलोगे उसके सामने से. यू हैव नो एक्सप्लेनेशन फॉर दैट. यू आर जस्ट लाइक सॉरी. सही है. which was the reaction my mom gave to a couple of students. सही है. ओके सो ये हुआ. सही है. ग्रुप्स बने. देन पीपल वर लाइक, और फिर बाहर प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया स्कॉटलैंड में, लंदन में. ठीक है. CAIE के ऊपर. सही है. स्पेशली A-level स्टूडेंट बिकॉज आई फील सबसे ज़्यादा खराब मसला A-level स्टूडेंट्स के साथ हो. ये हुआ. वहाँ पे कैम्ब्रिज ग्रेड कॉन्फ्लिक्ट ये चल रहा है यार. प्रोटेस्ट करना है. इस्लामाबाद पेपर है, हमें कराची में भी करना है. सही है. शफकत महमूद भाई ने ट्वीट लिख दी भाई अब तो सीन हो गया, अब तो CAIE को कुछ करना है. ठीक है. विच इज जेन्युइनली ट्रू. CAIE when your country's education minister tells a major operation like a major institution like Cambridge के bro प्लीज ये वापस देखो ये कोई मसला हुआ है, so they have to be like हाँ मैं चेक करता हूँ रुको. You can't just be like चुप नहीं. सही है. So वो हुआ. and honestly look people were like after जो हुआ and result change हुआ, people were like यार हमने protest किया. यार कराची वाले protest में कोई गया भी नहीं था. सही है. almost like 80 people to 100 people were interested. उसमें से कितने गए थे. ठीक है. गर्मी ऊपर से उस दिन इतनी थी. it was a Saturday after 14 अगस्त. ठीक है. एंड लास्टली हमारे उससे कुछ भी नहीं हुआ. वहाँ पे हो चुका था. शफकत महमूद भाई को मसला हो गया था तो उन्होंने कुछ किया था. ठीक है. अगर यूके लंदन में नहीं होता कुछ तो यहाँ पे भी खाक कुछ होने वाला था मेजॉरिटी. ठीक है. ये सैड नहीं है कि वो आपका क्या कहते हैं कोरंगी में मसला हो गया तो आपको वापस पेपर देने देंगे. ठीक है. ओके सो ये हुआ. सही है. पुशबैक आया. देन ऑब्वियसली पुशबैक आया. ठीक है. वो हो गया. देन क्या कहते हैं पीपल लाइक ऑब्वियसली सब हो गया. आई शुड स्टॉप सेइंग सब हो गया. ठीक है. कुछ नहीं हुआ. ठीक है. देन ये हो गया. रिजल्ट्स है. फिर स्टेटमेंट रिट्रेड हुआ. नए रिजल्ट्स है. एंड CAIE लाइक अब हम आपको आपके प्रोटेक्टेड ग्रेड्स ही देखेंगे. विच वॉज सच अ विम्प मूव फ्रॉम CAIE. इट वॉज जस्ट लाइक यार तुम लोग ने मुझे बुरा भला कह दिया यार, ये लोग मुझे बुरा कह रहे हैं यार, मैंने इतनी मेहनत की थी, तुम लोग ही कर लो जाके, मैं नहीं कर रहा. ब्रो CAIE तुम कितने 1850s में से चल रहे हो. गेट योर शिट राइट. यू शुड हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस. स्पेनिश फ्लू भी तो हुआ था ना, उस वक्त भी तो था. व्हाई डिड यू नॉट मेक दिस वर्क? व्हाई डिड यू नॉट बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस? ओके. So like you messed up and then you were just like अब schools को दो. Like नहीं, you should have done better. You should have seen कि नहीं, okay let me see what I can do. Let me make a massive operation and correct this in the least amount of time that I can. ठीक है. बहरहाल this is okay. सही है. So तीसरी चीज़ ये हुई. सही है. वो वापस हुआ और उसके हिसाब अब वो जो नया स्टेटमेंट आया स्कूल वाली चीज़ है उसके हिसाब से another problem came up which was बहुत सारे बच्चे थे दैट स्कूल के पीछे पड़ गए. ठीक है. एंड लाइक ये हुआ. नया रिजल्ट आया. ठीक है. पीपल लाइक सही हुआ. उस दिन मैंने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था. मैंने ओके हो गया. मैं अंदर गया. मैंने बोला अच्छा दूसरा काम किया. फेसबुक खोला एंड इट वाज ट्रेंडिंग हैशटैग शिट सर. ओके निक्सर प्लीज मेक योर हैशटैग्स बेटर. हैशटैग शिट सर इज रियली हार्ड टू से. यू नो हाउ मच शिट साउंड्स देयर आर इन दैट. ठीक है जी. सही है. सो दैट हैपेंड. देन आई हैड टू री-रिकॉर्ड द एंटायर थिंग. फिर वो हुआ. फिर उसके बाद वापस क्या कहते हैं वो सब स्कूल्स के ऊपर चढ़ना शुरू हो गए एंड इंस्टीट्यूशन का मसला फल्ला. ठीक है. सो व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट कि देयर वर इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने बच्चों के जिनके टेस्ट अच्छे थे उनके भी डाउनग्रेड करके भेजे. एंड द सिचुएशन दैट केम अप वाज कि एडमिन ने मसला किया, काउंसलर्स ने मसला किया. एंड पहले इट स्टार्टेड फ्रॉम निक्सर ब्लू दिस शिट अप. देन एक दो पोस्ट क्रेडो से भी आए थे, बीकन हाउस से भी आए थे. ठीक है. ये हुआ. देन
देयर वर ऑल्सो सम स्कूल्स जैसे आई नो AES में हुआ है कि जहाँ पे एकदम ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ गया, सही है, एंड उनका जब पहले खराब रिजल्ट तब से अच्छा रिजल्ट चल रहा था बिकॉज ऑब्वियसली उन्होंने बढ़ा के भेजा, ठीक है, ये भी हुआ है, ठीक है. सो ऑल ऑफ दिस वेंट डाउन. सम पीपल गॉट देयर ग्रेड्स बेटर. थोड़े लोग थे जिन्हें स्कूल ने खराब भी भेजे मगर क्या कहते हैं उनको फिर भी उनके जो AS के ग्रेड्स थे वही मिल गए, ठीक है. आई नो मोर फोकसिंग ऑन A levels बिकॉज दैट्स द मोस्ट नॉलेज आई हैव ऑन दिस, ठीक है, दैट्स वेयर इट कम्स फ्रॉम, ठीक है. उनको वही AS के ग्रेड्स मिल गए, ज़्यादातर के मेजॉरिटी के बढ़ गए. आई थिंक सारे यूज तकरीबन चले गए. एंड या that's the entire scenario, that's the entire recap of what happened. And now for why, the main underlying question, how did so much of this F up, ठीक है. So okay, so it started from the single point, ठीक है, where जब predicted grades announce हुए, ठीक है, because going into 2020 का academic year none of us were in the mindset के यार एंड मेरे स्कूल के ग्रेड्स मैटर करेंगे, ठीक है. Look, for a lot of people who are like me, I prioritize my extracurriculars and stuff like that सामने, और मैं दिमाग में रखता हूँ यार फरवरी से मैं पढ़ने बैठ जाऊंगा, मुझे पता है मैं कर लेता हूँ, आई एम गुड एट दिस, मैं फरवरी से करूंगा, मैं कर लूंगा, मेरा ग्रेड आ जाएगा, ठीक है. देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो शुरू से मेहनत करते हैं, ठीक है, बट देयर आर लॉट ऑफ जेन्युइन जो मिड्स के बाद से या मॉक से पहले अपना मेजॉरिटी एफर्ट डालते हैं, विच इज फेयर इफ यू नो में ऐसे हो जाता है, ठीक है. सो दैट हैपेंड, ठीक है. एंड जब ये प्रेडिक्टेड ग्रेड्स का आया, सो देयर वर पीपल जिन्होंने नहीं मेहनत की थी, ठीक है. ऑब्वियसली पेंडेमिक चल रहा था, मार्च में भी लोगों से नहीं पढ़ा जा रहा था, ठीक है. फिर प्रेडिक्टेड ग्रेड्स का पीपल लाइक मेरे पुराने ग्रेड्स अच्छे नहीं है, मैंने स्कूल में टेस्ट में कुछ किया नहीं है, या मैं बेहतर अक्टूबर नवंबर में चला जाऊँ, मेरे पास ज़्यादा चांस है मैं अपना ग्रेड बढ़ा लूँ. जिन लोगों को स्पेशली ग्रेड बढ़ाना था वो अक्टूबर नवंबर में गए. सो दीज वर ऑलरेडी पीपल जो लोअर एंड पे चल रहे थे. अगर आप इफ़ यू जस्ट टीयर इट अप एंड यूर लाइक गुड स्टूडेंट जिनका A आ जाता है, देन यू हैव मिड टीयर स्टूडेंट जिनका B और C होता है, देन यू हैव D and E स्टूडेंट्स, ठीक है. यू हैव दीज स्टूडेंट्स, राइट. एंड उसमें से मेजॉरिटी DE में से थे जो अक्टूबर नवंबर के सेशन में गए. ऑब्वियसली A B C सबसे गए हैं, लेकिन मेजॉरिटी इस कोने से गए हैं, ठीक है. आई मेक अ ग्राफ और समथिंग हियर, ठीक है, इस कोने से गए. सो व्हेन क्या कहते हैं प्रेडिक्टेड ग्रेड्स आर सीन, दीज पीपल डिड नॉट अप्लाई. सो जब प्रेडिक्टेड ग्रेड्स है ना, यहाँ से लोग ही हट गए, ठीक है. रिमेंबर दैट दिस पोर्शन ऑफ द ग्राफ इज मिसिंग, सही है. सो देन द सेकेंड रीजन विच वॉज द रैंकिंग सिस्टम. CI ने कहा था आप रैंक करके भेजो बच्चों को, ठीक है. अब यहाँ पे ना यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग एंड विच इज स्पेशली इन कॉलेजेस, ठीक है. सो जब आपने रैंक किया ना, अब आपको पता है मेरी कॉलेज में 30 बच्चों के A's आते हैं, राइट. आपके पास 31वां बच्चा है जो आपको पता है पढ़ने में बहुत वो कर लेगा, वो A ले आएगा, ठीक है. नो, आपके दिमाग में डाउट नहीं, लेकिन आपके सब्सटैंशियल एविडेंस नहीं है प्रूफ करने के लिए. और अगर आप उसको A में डालते हो 30 किसी और को पुशबैक, तो आप उस दूसरे बंदे के साथ नाइंसाफी करो जो टेक्निकली उससे ज्यादा रिलायबल है, जो आपको पता है ज्यादा चांसेस है ले आए, तो उस बंदे को क्यों नहीं फेवर करो, इसके ज्यादा चांसेस है ये लाने के, ठीक है. इसने क्लास में भी दिखाया कि वो हाँ कर सकता है, आप उसको दोगे प्रेफरेंस, ठीक है. अब वो बच्चा B में आ गया, ठीक है. एंड देन सेकेंड चीज जो लॉट इंस्टीट्यूशन के एडमिन के पास गया, एडमिन के पास गया, हर जगह गया एडमिन का, बिकॉज द एडमिन हैड टू मेक श्योर कि वो कर्व के अराउंड सही है. अब टीचर ने तो उसको मूव कर दिया, बट देन एडमिन हैड टू सी कि यहाँ से ये बच्चे नहीं है, तो हमें कर्व रीवैल्यूएट करना है, ठीक है. गेट इट, वो बच्चे चले गए, सो यू हैड टू पुश बैक द एंटायर कर्व. सो वो B वाला और पीछे B में चला गया, ठीक है. दैट कर्व स्ट्रेच्ड आउट. एंड अनदर थिंग फ्रॉम दैट सेम थिंग, रैंकिंग वाली चीज इज, लुक, आपकी क्लास में यू माइट हैव बीन लाइक, हाँ, आप जैसे फॉर एग्जाम्पल यू हैड केमिस्ट्री टीचर A, ठीक है. केमिस्ट्री टीचर A इस क्लास में आप अच्छे थे, आपका A* आ सकता था, भले टॉप नहीं थे आप स्टूडेंट, लेकिन आप बॉटम A* में आ सकते थे या A में आ सकते थे, ठीक है. देन क्या कहते हैं, आप ये भूल जाते हो कि देयर आर ऑल्सो केमिस्ट्री टीचर B एंड केमिस्ट्री टीचर C, ये तीनों एक ही इंस्टीट्यूट में पढ़ा है. ऐसा नहीं कि इन बच्चों की रैंकिंग A की रैंकिंग अलग होगी, केमिस्ट्री टीचर B की रैंकिंग C की अलग, तीनों के बच्चों की एक ही रैंकिंग में जाएगा. तो जो फर्स्ट बच्चा वो तीनों क्लासेस में से बेस्ट बच्चा होगा, जो सेकंड बच्चा होगा तीनों क्लासेस में से सेकंड. सो दिस वे यू आल्सो गेट पुश्ड बैक. सो दीज रीजंस पाइल अप ऑन ईच अदर, एंड इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जिनका टेस्ट अच्छे थे मगर वो लोअर एंड के A से शुरू के C में चले गए, विच इज अगेन यू गॉट द वर्स्ट एंड ऑफ द स्टिक. दैट इज टोटली फेयर. आई एम नॉट सेइंग जो हुआ है वो सही हुआ या जस्टिफाइड. आई एम सेइंग देयर इज अ रीजन, एंड नो इंस्टीट्यूशन
would genuinely be like यार फेल कर दो अगले साल पढ़ेगा, क्यों? Okay, future Taha here, and before you leave hate comments, मेरी बात सुनो. I acknowledge that a few institutions really did mess up students' grades, and hashtag shitsir was also trending because of Nixor की predatory practices in terms of financial gain. ठीक है, but that is applicable to a small minority, whereas जो general situation है it's applicable to a majority जिनके साथ ऐसा नहीं हुआ. So yeah, that don't give me death threats. सही है, thank you. On with the podcast. आपके रिकॉर्ड में आता है कि बच्चों उसके यू आए या ग्रेड्स खराब है, यू कैन इजीली से मेरे बच्चों के ग्रेड्स अच्छा है. व्हाई वुड यू नॉट डू दैट? इट्स बिकॉज यू नो कि यार सही नहीं है एंड इट्स नॉट फेयर, इट विल रिजल्ट इन नेगेटिव वो. ठीक है, सो नो इंस्टीट्यूशन डिड इट डिलिबरेटली, देयर इज नो मैलिशियस वो इसके पीछे. इट डज नॉट मेक सेंस फॉर दैट टू बी. ठीक है, maybe I'm completely wrong. Almost all of my knowledge comes from the fact के जो ग्रुप्स पे आया और जो चीज़ें आया, मुझे पर्सनली इतनी सारी चीज़ें नहीं पता. मुझे पता है that मुझे बैकग्राउंड से पता है through my mom because she teaches O-levels. ठीक है, that's it. सही है, ये हुआ. ठीक है, एंड थर्ड रीजन, CI lied to you. CI said स्पेशली फॉर A levels कि आपके AS के ग्रेड्स और CI के खुद के ग्रेड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो इट शुड नॉट मैटर कि स्कूल ने आपका C भेजा, अनलेस स्कूल ने आपका, क्योंकि इफ CI सेज कि हाँ बच्चे की कंटिन्यूस A's हैं पिछले सालों में, उसमें 3 साल से वो साइंसेस दे रहा है, उसने O levels में भी दिया, AS में भी दिया, वो वापस दे रहा है. अगर तीनों दफा A तो मेजोरिटी वो A तो एटलीस्ट ले आएगा. यू कांट जस्ट गिव हिम अ C, बट CI स्टिल चोज द रैंकिंग सिस्टम. ठीक है, सो CI outright lied to you. I for one blame Cambridge the most. ठीक है, सही है. So yeah, look, I do agree all of these 3 reasons. ठीक है, I do agree कि जब इस तरह वो वाली रैंकिंग सिस्टम होता है एंड स्कूल्स की तरफ से ग्रेड्स आते हैं, इट्स नॉट द बेस्ट सिचुएशन. इट्स डेफिनेटली अ बेटर सिनेरियो फ्रॉम द प्रीवियस वन जहाँ पे बच्चों के फालतू के C's आए, बट इट्स नॉट द बेस्ट सिनेरियो. ठीक है, बिकॉज टीचर्स कैन बी बायस बोथ वेज. मुझे पता है मैं एक प्रोमिनेंट पढ़ने में अच्छा बच्चा था, तो मेजॉरिटी टीचर्स क्या कहते हैं, मेरा नाम पहले उनके दिमाग में, चांसेस है मेरा ग्रेड उसके वजह से भी एक बढ़ जाए. अनकॉन्शियस बायस कैसे, मे बी इट्स नॉट कॉन्शियस बट अनकॉन्शियस. एंड थोड़े बच्चे होंगे डेफिनेटली जो टीचर्स के दिमाग में रहते, दे गो अंडर द रेडार, और वो बच्चे जेन्युइनली ए आराम से ले आते हैं. बट यहाँ पे किसी को उनके दिमाग में नहीं आया, दे डिड नॉट हैव इनफ एविडेंस एज वेल, तो उनको बी सफ़र करना पड़ा. बोथ फैक्टर्स कम इनटू प्ले. अगेन AES वाली जगह जहाँ पे रिजल्ट्स बढ़ा दिए गए क्योंकि देयर वाज नो प्रॉपर चेक, एंड देयर आर अदर इंस्टीट्यूशन लाइक निक्सर जहाँ पे गिर गए बिकॉज ऑफ द अदर, बिकॉज एकदम ज़्यादा कंपटीशन हो गया, एकदम ज़्यादा वो लंप हो गया एक दूसरे के ऊपर द प्रॉब्लम, एंड दैट हैपेंड. ठीक है, लुक, the people who got the shorter and the 6 are definitely in the minority. वो कैम्ब्रिज वाले ग्रुप पे again coming to that, it had around 6.6 members. उसमें सिर्फ the majority I saw had a problem with like 50. चलो 100 300 कर लो, ठीक है, multiplied by 6, that's still around less than 5% of the total people. Even 10% भी हो तो it is a minority that got the short end. Majority grades improve हो गए. ठीक है, but look, I still find it appalling कि फालतू में जिन लोगों के grades बढ़ गए या फालतू में जिनके गिर भी गए, but because look, for me it's like आपकी grades devalue हो जाते हैं उसकी वजह से. ये तो बच्चों को आगे scholarships और उन चीज़ों में मसला होगा, because you can't judge, grades do judge you for a certain extent, they do judge कि बच्चा कैसा पढ़ सकता है. ठीक है, अब कैसा पेपर दे सकता है. It's not everything but it's helpful for a university or college to determine कि बंदे को scholarship देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए. ठीक है, so अब वो और jumbled up हो जाएगा. अब you can't predict that through बच्चे. ठीक है, properly. सही है. Also one thing I want to say, this colleges जिन्होंने AS के बच्चों की scholarship retain की, regardless, you are amazing, good job. ठीक है, that deserves to be said. ठीक है, सो या फॉर मी इट्स लाइक अगर 2 लोग रेस में हो, ठीक है, और आपने पूरी मेहनत की, आपने अपनी पूरी जान लगाई रेस के लिए, आपने पूरा रेस के लिए पढ़ा किस तरह भागना है, क्या करना है. सही है, आपने पूरे साल आपको पता था मैं ये रूटीन फॉलो करूंगा तो मैं जीत सकता हूँ. ठीक है, एंड यू जस्ट गेव योर ऑल. ठीक है, एंड देयर वाज दिस अदर पर्सन जिसको फ़र्क नहीं पड़ता था रेस होने वाली, उसने कभी रेस पे ध्यान नहीं दिया, उसने कभी रेस को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी. वो कहता है यार मैं भाग लूँगा, मैं कर लूँगा, मैं देख लूँगा. ठीक है, एंड एंड में रेस कैंसिल हो जाती है और आप दोनों को ए मिल जाता है. यू विल फील बैड बिकॉज यू फील मेरा एफर्ट डिवैल्यू है, एंड दैट्स नॉट फेयर टू एनीवन. ठीक है, ओके, सो आई मेड हैव सेड दैट मेटाफोर अ बिट टू मच, बट बेसिकली दैट. सो ये सब हुआ. सही है, एंड नाउ अब बस निक्सर वालों को बोलना है कि वो 15% जो फीस है उसके लिए भी ग्रुप बना ले, तो हम लोग को कॉलेजेस वो भी वापस कर दें. लाइक निक्सर ग्रुप्स कैन डू एनीथिंग.
Okay, so yeah, that. So, but yeah, I get it. For a lot of people, it's been really, वो कि यार क्या हो रहा है, बार बार ये हो जाता है. लॉट ऑफ पीपल आई सॉ लॉस्ट होप कि यार नहीं होने वाला, यही है यार, अब हो गया जो भी. ठीक है, एंड आई गेट दैट फीलिंग. आई हैव बीन फीलिंग दैट since 2020 तो वैसे, but I don't know, for the last couple of times a lot, especially regarding what I see happening. ठीक है, न्यूज़ वगैरह में at this point पता नहीं पिछले 3-4 महीने से I've just adopted this ideology, यार छोड़ दो, मत देखो. ठीक है, just remove yourself, because the more I watch it, the more I feel मैं desensitize हो जाता हूँ. I cannot cope up with everything. So मैं उन चीज़ों के effect जो इतना बड़ा जो tragedies होती हैं मेरे दिमाग में, उनकी जो consequences effects वो गिर जाते हैं. So I try कि मैं छोड़ दो, नहीं देख रहा मैं. ठीक है, I feel that because यार honestly going through your newsfeed every day feels like a new hashtag for justice for XYZ. अभी हयात बलोच था, उससे पहले जूली का था. Then there was this guy जिसके साथ कोई डिसएग्रीमेंट हुआ, ब्लास्फेमी लॉस का उन्होंने उसके ऊपर क्लेम किया कि इसने वो किया है और उसको मारने आ गए. देन देयर वाज दिस अहमदी गर्ल और बॉय जिसको मार दिया गया. देन देयर वाज दिस क्रिश्चियन गर्ल हु वाज रेप्ड एंड देन उस फोर्स्ड इनटू मैरिज. All of these things happened and just constantly going through those, you're like क्या हो रहा है यार, ये कहाँ हूँ मैं. ठीक है, and look, I want to put this out there कि I don't hate this country. I love my country because you do not feel bad for something you do not have any attraction, you don't have any affection to. ठीक है, I do have a lot of affection for this country because देखो, अगर किसी बाहर मुल्क में एक बच्चे की टांग टूट जाए ना तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा. आपके अगर पोस्ट पे भी आएगा, आप एक लव रिएक्ट छोड़ोगे, उसको स्क्रॉल कर दोगे. ठीक है, लेकिन बिकॉज मेरे मुल्क के साथ होता है तो मुझे बुरा लगता है. एंड इट जेन्युइनली हर्ट्स बिकॉज यू सी कि इट्स दिस piece of land जहाँ पे क्या कहते हैं, it's amazingly beautiful, it has amazing people, it's just so eternally destroyed, it's so eternally broken. It hurts. ठीक है, it hurts because look, another example of this is मेरा खुद का, मैंने अभी जो लास्ट वीडियो पब्लिश की थी जनरेटिंग कॉन्ट्रोवर्सी, आई टॉक्ट अबाउट मलाला यूसुफजई एंड डॉक्टर अब्दुल सलाम. वो 1-2 और ग्रुप्स में गई वो वीडियो. ठीक है, one thing I made sure in that video is I do my absolute research. Even a throwaway line, एक gag, छोटा सा मजाक, everything nothing should be like false. उसमें कोई भी information गलत नहीं है, should be proper. ठीक है, मैंने links डाली and groups पे गए and a lot of people told me अच्छा है but controversial है, and that scared me so much. मैंने 1-2 दिन के लिए उसको private कर दिया. बिकॉज फॉर मी जस्ट थिंकिंग, मेरा थॉट ऑफ सेइंग कि है ये एक बंदा है जो एक छोटी माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, मे बी हमें इसकी अचीवमेंट ज़्यादा हाईलाइट करनी चाहिए. दैट थॉट आई फेल्ट वॉज इनफ के टू स्पार्क हेट्रेड इन सम पीपल दैट दे माइट कम आउट टू किल मी. दैट इज वेयर आई एम and that is horrifying to think about. It's just morally wrong to think about. I don't understand why this happens. It's just everywhere though. Like मुझे कहा जाता है कि it's gonna get better because youth है आपकी, but then I see my youth, that same youth in comments saying ha, making rape jokes, making harassment jokes, not seeing past something, just always blaming victims, and that thing of constantly growing on and on and on. ठीक है, just not accepting the fact कि आपके मुल्क में flaws हैं. That's I see. मैं औरत मार्च में गया था, so there were I don't know कितने, there were a lot of people जिनको बैरियर से रोकना पड़ रहा था, सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे बिकॉज लोगों को they were protesting a protest. How petty do you have to be to protest a protest? वहाँ पे या आई नो औरत मार्च में थोड़े लोग होते हैं जिनके बैनर्स आर वेरी, क्या कहते हैं, हाउ शुड आई से दिस, प्रोवोकिंग. ठीक है, बिकॉज यार आप इतने से साइन बोर्ड में सब कुछ एक्सप्लेन करें, सो द थिंग्स यू राइट हैव टू बी अ लिटिल स्नैपी. उस तरह लिखते हो, यू डू नॉट हैव टू टेक एवरीथिंग लिटरली एंड यू डू नॉट हैव टू जज अ प्रोटेस्ट बाय इट्स वर्स्ट मेंबर्स. ठीक है, बट पीपल वर देयर, दे वर थ्रेड्स के एसिड फेंकेंगे लोग, एंड उसमें से जो लोग लड़के वहाँ खड़े हुए थे वो कोई 40-50-60 साल के बुढ़े लोग नहीं थे. देयर वर पीपल इन देयर 20s. दैट वाज द यूथ ऑफ माय कंट्री. दैट हर्ट्स. ठीक है, दैट हर्ट्स टू सी बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव टू ड्रॉ दिस डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ये लोग सच हैं, ये लोग झूठ हैं, गलत है. यार
एक्सप्लेन टू मी द फैक्ट कि जब क्राइस्ट चर्च में न्यूजीलैंड में बॉम्बिंग्स हुई थी मस्जिद में, मैंने कहीं नहीं देखा था that somebody said कि यार ये जो मुसलमान मरे ये शिया थे या सुन्नी थे या आगा खानी थे या जो भी थे. नहीं, पीपल लाइक मेरे मुसलमान भाई मरे, दुनिया वाज लाइक मुसलमान मरे, राइट. देन जब यहाँ होता है, देन वाई डू पीपल गो लाइक यार वो शिया था यार वो सुन्नी था, क्या फ़र्क पड़ता है वो कौन था. यार क्या फ़र्क पड़ता है, टेल मी. वो कौन सा भी मुसलमान हो, मुसलमान था, ठीक है. जब बाहर में जब वो मुसलमान था या नहीं था, वो इंसान था, ठीक है. मेरे मज़हब में मैंने कहीं नहीं पढ़ा था कि इट वॉज रिटन के छोटी सी झगड़ों पे आप किसी को मार डालो. मैंने पढ़ा था अरब में जहालत के दिन थे जब ऐसा होता था कि छोटी छोटी बहस पे ख़ानदानी जंगें हो जाती थी. मुझे था कि मुल्क इस्लाम के नाम पे बना था, और मुझे है कि मुझे है कि इस्लाम वो मज़हब है जो कहता है कि यार फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप उससे डिस से फ़र्क नहीं पड़ता वो आपको गालियाँ दे, फ़र्क नहीं पड़ता वो आपके सामने कचरा फेंके, आपको मारे, आप सब्र से काम लो, खुदा देख लेगा. तो फिर क्यों लोग उस चीज़ों को उठा के ऐसी चीज़ों को फ्रेस करते हैं, इस तरह उस स्क्रिप्चर को फ्रेस करते हैं कि जस्टिफाई कर सके वायलेंस, जबकि मैं कभी नहीं सोच सकता कि वो मज़हब जस्टिफाई करता है वायलेंस. लुक अगेन, आई एम नॉट अ वेरी रिलीजियस पर्सन. फॉर मी रिलीजन इज़ एक खुदा है और वो कहता है कि हुकूकुल इबाद है कि इंसानों के साथ अच्छा करो, तुम्हारे साथ अच्छा होगा. दैट्स फॉर मी, दैट मेक्स अप द कोर ऑफ माई रिलीजन. But I feel that's not what makes the core of the religion of every Pakistani. I feel the minority in Pakistan, we criticize other countries for their minorities. I know बहुत सारे मुल्क में और बुरा होगा, but मुझे नहीं फ़र्क पड़ता. मेरा मुल्क में मसला है, मुझे उससे फ़र्क पड़ता है, right? So we criticize other वो people, but यार you say your minorities are protected. You say that white represents your minorities. You say those minorities are equal. Then why are some people more equal than others? Well, with that Animal Farm line, I'm ending this on a very depressing note, because why not? So yeah, sometimes life is just depressing. This is the podcast you get in 2020. So yeah, just constant depression, constant sadness, constant in your face this shit is happening. So sometimes nahi hota acha, sometimes it's just this. And you have to deal with this. You have to work for this. You have to do something about this. Well, I hope कि कुछ हो जाए इसका. But जब तक, thank you and Allah Hafiz.